Hello everyone. Welcome back to Madam H. We are deeply sorry for the absence in the videos because I was occupied with some of my personal as well as professional work, so I could not make the video. However, we are back again with one of a very important topic that is crucial for your CLAT exam preparation. So, let us begin. Well, you must have heard that there are protests going on in Ladakh. So, high up in the Himalayas, Ladakh is not just about breathtaking landscapes and snow capped peaks. Today, we see that its people are raising their voice for something much deeper, that is, statehood and the inclusion under the 6th schedule of the Constitution. Why are Ladakhis demanding this special status, and what does it mean for their identity, resources, and their future? So, in today's video, we'll break it down for you step by step. So, let's start. Why is it in news? So, as you all can see, that Ladakh is seeing protest, and what do the protesters want? They have certain demands. There has been unrest, and it is very saddening. And all my condolences with the family who have lost their children and who have lost their family members. But there are clashes, and there is a protest. They seek statehood for Ladakh, and they also want the extension of the constitutional safeguards under the 6th schedule. So now all of these words might be sounding little unfamiliar to you, so let us break this down. Now, what is the 6th schedule framework? Statehood we are understanding. Statehood पे थोड़ा सा मैं पहले एक इंट्रोडक्शन, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देती हूँ. In 2019, when the Jammu Kashmir Reorganization Act was passed, the state of Jammu and Kashmir and Ladakh, they were divided and they were separated, like they were made into two different union territories. Jammu Kashmir being the union territory, it was given a state legislature, but Ladakh was not also, it was not given the state legislature also, and it came under the direct control of the central government. So in 2019, they both were made union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh, with Jammu Kashmir having the having the state legislature, and Ladakh not having the state legislature but coming directly under the control of the central government or the union. So they demand that their statehood should be reinstated. They should be given back. They should be given the statehood, and they should have their representation. Clear? Now, regarding the 6th schedule, what is basically 6th schedule? 6th schedule is given in the Constitution, and under Article 244 and 275, they are given certain special powers, or they are given certain special constitutional safeguards. Now, under 6th schedule, there are already 4 states that are being given this special status or special safeguards. That is Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. You can remember this by the trick AMTM. I have memorized it like this, so you can also memorize it like this: Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. Now, what happens is, once they are given this special safeguard of 6th schedule, the governor is empowered. The governor is given power to create autonomous district development, maybe autonomous district or development, either of the words you can say, autonomous district councils and or ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स. रीजनल काउंसिल्स कब बनाई जाती हैं? जब किसी एक स्टेट में बहुत तरीके की ट्राइब्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो ये ऑलरेडी कहाँ पर प्रेजेंट हैं? जो 4 स्टेट्स हमने ऊपर पढ़े, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. अब ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या डेवलपमेंट काउंसिल्स जो होती हैं, इनमें मोस्टली एट मैक्स 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं और बाकी के जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. However, there is an exception, that is your बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल. इन दिस देर आर 46 मेंबर्स. बोडोलैंड कहाँ पे? आपका आसाम में है. क्लियर? तो उसमें 46 है, अदरवाइज मैक्सिमम 30 मेंबर्स होते हैं. अब ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं या ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स होती हैं, इनके पास कुछ स्पेशल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स होते हैं. जैसे क्या क्या? ये अपने लॉज खुद बना सकते हैं
with regard to land management of the forests, inheritance of property, marriage and divorce, ट्रेडिंग एट्सेट्रा. तो बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, ये अपने इन सब अफेयर्स से रिलेटेड दे कैन मेक देयर ओन लॉज. प्लस दे कैन मैनेज देयर ओन स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, फिशरीज, पॉन्ड्स. उनका मैनेजमेंट कैसे होगा वो भी ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या डेवलपमेंट काउंसिल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं, जिसमें से 26 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. और यहाँ के जो काउंसिल के जो कोर्ट्स से जो भी केस निकलेगा वो सीधे या तो हाई कोर्ट्स में जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और कोई कोर्ट के पास इसको देखने की पावर या ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा. पावर इज नॉट द करेक्ट वर्ड, लीगल टर्म इज ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन किसी और कोर्ट को नहीं होगा. दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन बजट, कलेक्ट रेवेन्यू, एलोकेट रिसोर्सेज, ये सब वो कर सकते हैं. नाउ क्यों ये ऐसा करना चाहते हैं? वाई लद्दाख वॉन्ट्स इट्स ओन autonomous district council, why they want the safeguards of the 6th schedule. अब ये पढ़ते हैं why this demand. Because they believe that Ladakh has its own unique tribal identity, they have their own cultural heritage and they have certain नेचुरल रिसोर्सेज, या वहाँ पे जो एक क्या बोलते हैं, जो स्नो और ग्लेशियर का जो एक बायोडाइवर्सिटी है, जो एक यूनिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बिकॉज हिमालयाज़ हैं उधर, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो आप नॉर्मल डेवलपमेंटल या कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ कैरी आउट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द फ्रेजाइल और द यू कैन से सेंसिटिव इको सिस्टम ऑफ लद्दाख. ठीक है, तो उसको हमें प्रिजर्व करना ज़रूरी है. और वहाँ का यूनिक ट्राइबल कल्चर है, यूनिक कल्चरल हेरिटेज है वहाँ की, जो डिफरेंट है, विच इज़ जस्ट लाइक यू कैन से दैट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जैसे उनका डिफरेंट है वैसे हमारा भी डिफरेंट है. सो वी वांट दिस सेफ गार्ड ऑफ 6th शेड्यूल. क्लियर? सो दिस इज देयर डिमांड. दे वांट देयर स्टेटहुड एंड ऑल्सो दे वांट द स्पेशल स्टेटस और द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड ऑफ द 6th शेड्यूल. क्लियर हो गया? अब देखो एक और चीज़ होती है 5th शेड्यूल, और स्टूडेंट्स को जनरली इसमें कन्फ्यूजन होता है, मुझे तो होता था, तो मैंने सोचा लेट्स डील विद दिस ऑल्सो. देर इज़ वन शेड्यूल नोन एज 5th शेड्यूल ऑल्सो. अब देखो 5th शेड्यूल में क्या होता है. 5th शेड्यूल में जो आप एरियाज़ हैं वो किसी भी स्टेट में आप किसी भी ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्शन दे सकते हैं. वहाँ पे क्या बनते हैं, वहाँ पे ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनती हैं. ठीक है, एट प्रेजेंट 5th शेड्यूल कितने स्टेट्स में लागू है या कितने स्टेट्स में लगा हुआ है, तो एट प्रेजेंट आपका 5th शेड्यूल 10 स्टेट्स में लगा हुआ है. ठीक है, दिस कैन बी योर झारखंड, दिस कैन बी योर छत्तीसगढ़, MP, बिहार, वेर एवर देर इज ट्राइबल पॉपुलेशन एंड यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट इट, यू कैन गिव देम दिस 5th शेड्यूल का सेफ गार्ड. यहाँ पे मोस्टली एग्जीक्यूटिव पावर्स मिलती हैं. बट 6th शेड्यूल के साथ क्या स्पेशल फीचर है, ये सिर्फ अभी 4 स्टेट्स में लगा है जो हमने ऊपर पढ़ा, AMTM, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा. यहाँ पे ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल्स नहीं, या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजनल काउंसिल्स बनती हैं, और इनके पास बहुत तरीके की पावर्स होती हैं, जस्ट लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स. अब देखो ये ज़रूरी भी है, इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव देम दिस स्टेटस बिकॉज देयर इकोसिस्टम इज़ फ्रेजाइल, दे हैव द यूनिक कल्चर विच नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. हम वहाँ पे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन या नॉर्मल माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं. इट विल डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस. हाउएवर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि वहाँ पे वो हमारा बॉर्डर एरिया लगता है. ठीक है, तो बॉर्डर एरिया के लिए वी नीड स्पेशल सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम द बॉर्डर सेंसिटिव एरियाज़. तो कुछ लोग का कहना है कि वो यूनियन के साथ या यूनियन के अंडर है तो इट इज़ बेटर. प्लस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स को बनाने में यू नीड यू नीड अ गुड एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि उनको रिसोर्सेज देने होते हैं, उनको एलोकेशन ऑफ फंड्स चाहिए होता है. तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं. और ये जो रिसेंट में प्रोटेस्ट आउटब्रेक हुआ, ये 6 साल से चल रहा था. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ द लीडर हु वॉज एंड द एनवायरमेंटलिस्ट, जिनके ऊपर एक फेमस मूवी 3 Idiots भी बनी थी, मिस्टर सोनम वांगचुक. तो ही वॉज लीडिंग दिस प्रोटेस्ट. वो काफ़ी टाइम से हंगर स्ट्राइक और ये सब चीज़ें कर रहे थे सिंस 6 years. और अभी रिसेंट में जो ब्रेकआउट हुआ, बिकॉज बहुत से ऐसे
एक्सपर्ट्स का कहना है दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल्सो एंड ऑल ऑफ दो स्टफ. सो ये बेसिकली दे वांट दिस स्टेटस ऑफ 6th शेड्यूल एंड स्टेटहुड. सो आई होप आपको जो डाउट होगा वो समझ में आया होगा. डिफरेंस बिटवीन 5th एंड 6th शेड्यूल, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज बेसिकली देयर डिमांड, व्हाट इज ऑल अबाउट 6th शेड्यूल, क्या होता है, कैसे होता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उसको मिलने से क्या फ़ायदे होंगे. आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी. एंड आई प्रॉमिस आई विल बी रेगुलर इन पोस्टिंग द वीडियोज़. सो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट because that motivates me to go further. Thank you so much. Stay tuned for such informative videos.